Hello students, welcome back. Hope you all are doing good. We have studied about one principal document which is required to be prepared while forming a company. Today we will start about another document which is also necessary while forming a company, which is known as the Article of Association. It is the secondary document which is needed while forming the company. It contains the rules and regulation regarding the management of company's internal affairs, means how the company will be managed. It defines all the power, duties and rights of managers, officers and the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि कौन कितना काम कर सकता है, कितनी पावर्स रहेंगी, कितने राइट्स रहेंगे. एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है ना, जनरली सब लोग खुद अपने बनाते हैं. इन केस कंपनीज डू नॉट वांट टू प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन केस दे आर ऑफ मूड कि लाइक नहीं हम नहीं बना रहे, ठीक है, तो दे कैन सिलेक्ट एनी वन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गिवन इन टेबल एफ ऑफ द कंपनी से. अगर आप अपनी डायरेक्टली नहीं बनाना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो चूज फ्रॉम द टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट विच ऑलरेडी हैज 99 मॉडल सेट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आउट ऑफ दोस 99 यू कैन सिलेक्ट एनी फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, देन द आर्टिकल्स हैव टू बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स. इट शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस. ठीक है, these are called the doctrine of indoor management or the bylaws of the company. It contains all the information which is necessary to maintain the business internally. This information is not for outsiders. This is the information which is useful for the internal management. ठीक है, the contents are divided into paragraphs and paragraphs are numbered. कि first इस purpose के लिए आप ऐसे rules करेंगे, for second thing the rules will be like this, for everything it is mentioned. The main contents of the article of associations are the amount of share capital in different classes of shares. What will be the amount of share capital, and if there are different categories of share, so what are those different categories. Then rights of each type of shareholder, like if there is any equity shareholder उसके क्या rights आएंगे, preference shareholder है उसके क्या rights आएंगे, for everyone क्या क्या rights आएंगे वो सब इसमें mention होता है. Then procedure for making allotment of shares, when company will allot the shares, when company will issue the shares to public, what will be the procedure for that. If the company will issue share certificates, if people have subscribed for shares and the company has to issue shares certificate, then what will be the procedure. If someone wants to transfer the share, what will be the procedure for that. If company has to forfeit the shares, forfeit the share means company has to cancel the shares of the people who have not paid their calls. So उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा. इफ़ द कंपनी हैज़ टू रीइशू दोज फॉरफिटेड शेयर्स, जो कैंसिल किए शेयर्स अगर वो रीइशू करने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा. कंडक्ट कैसे करेंगे मीटिंग्स, जनरल मीटिंग है या बोर्ड मीटिंग्स है, उसको कंडक्ट करने का क्या प्रोसेस रहेगा. ठीक है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, रिमूव करने का, उनकी ड्यूटीज़, पावर, रेमुनरेशन मीन सैलरीज वगैरह. ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं सब स्पेसिफाइड होती हैं आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि पेमेंट डिविडेंड का किस तरीके से देना है, कैसे डिक्लेयर करना है, कितना % डिक्लेयर करना है. द प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, इफ कंपनी हैज़ टू शट डाउन तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से कंपनी को शट डाउन किया जाएगा. प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन देयर ऑडिट, कि ऑडिट अगर करवाना है तो ऑडिट किस तरीके से होगा, कंपनी के अगर अकाउंट चेक होंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है. कंपनी की सील मींस ओवरऑल सारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं, ठीक है, कंपनी के जो भी सारे रूल्स रेगुलेशन हैं वो सारा का सारा कुछ इसमें मेंशन होता है. आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड as altered from time to time or applied in pursuance with any previous company law of this act. ठीक है, बेसिकली अगर हम ये बात करते हैं कि आर्टिकल्स बोल रहे हैं तो आर्टिकल्स का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सीधे मतलब क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपके सारे रूल्स रेगुलेशन हैं जो या तो आपने खुद बना रखे हैं या फिर आपने कंपनी एक्ट से कॉपी कर रखे हैं या फिर जिनमें आप अमेंडमेंट्स करते रहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जिनको चेंज करते रहते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आर्टिकल्स में, आर्टिकल जब हम बोलेंगे तो उसके अंदर कवर हो जाएंगी. अगर ऑल्टरेशन कर रहा हूँ, इफ़ द कंपनी वांट्स टू ऑल्टर, इफ कंपनी वांट्स टू
ऑल्टर यानी कि चेंज करना चाहती है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें बस देखो ध्यान रखना है, सबसे पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स 2/3 मेजोरिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए, 2/3 मेजोरिटी के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ऑल्ट्रेशन किसी भी प्रोविज़न, चाहे वो कंपनीज एक्ट का हो, ठीक है, चाहे क्या कहते हैं वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। आपके जो आर्टिकल्स मेंशन हैं, जो भी आपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कंपनी लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइड। यू कैन नॉट डू एनी सच चेंज which will change the contract, yeah, which will cancel the contract with outsider. The changes should be in interest of company, the change should be in favor of company. It should not result in increasing the liability of member. ऐसा कोई चेंज नहीं लाएंगे जिससे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी बढ़ जाए। एंड अगर आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। इफ़ यू आर चेंजिंग फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक तो कोई आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, बट इफ यू आर चेंजिंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट तो उस केस में आपको अप्रूवल्स चाहिए होंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वन मोर डॉक्यूमेंट इज लेफ्ट, वी विल स्टडी दैट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।